हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में लेसन 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर फैमिली प्लानिंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और डिफरेंट मेथड्स जो हैं लाइक मैकेनिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड, ये क्या मेथड्स हैं जिनके कारण कि हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसको हम स्टडी करेंगे और इस वीडियो में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस बाय विच मेल गैमीट दैट इज द स्पर्म यूनाइट्स विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट। सो जैसे कि हमें पता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल हैविंग अ फ्लैजिला एंड दिस इज द हेड पार्ट, ये इसका टेल पार्ट है। And this is male reproductive gamete, that is the sperm. It is when, and this is egg. So when these two fertilize together, a zygote is formed, and this is known as fertilization. Now what will happen when this egg is not fertilized? Now first let us see that what happens when egg is fertilized. As we have just seen, zygote is formed and this zygote is planted in uterus and develops into an embryo. Now this embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue known as placenta, and this placenta provides a large surface area for the exchange of glucose, oxygen and waste material. Now the time period from fertilization up to the birth of the baby is called as the gestation period, and it is about 9 months. कि 9 months लगते हैं फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक, और इस पीरियड को हम क्या कह रहे हैं? गेस्टेशन पीरियड कह रहे हैं। एंड प्लेसेंटा, द यूज ऑफ प्लेसेंटा, इट इज अ स्पेशल टिश्यू with the help of which exchange of glucose, oxygen and waste material is taking from a mother's body to the embryo, and the waste material from embryo to the mother's body and is disposed of. Now let us see what is happening when egg is not fertilized. So as we know that the uterus prepares itself every month to receive a fertilized egg, and the lining of the uterus becomes thick and spongy, required to support the embryo. So when fertilization does not take place, this lining is not needed any longer. So this lining breaks up and comes out through vagina in the form of blood and mucus, and this cycle takes around 28 days every month, which is known as menstruation. Now what is reproductive health? Reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physically, emotional, social and behavioral. Now what are different types of sexually transmitted diseases? This part is also important from the exam point of view. Sometimes questions may be asked from this topic. So many diseases can be sexually transmitted, such as gonorrhea and syphilis, wart and AIDS. So these are the diseases, sexually transmitted diseases. So we should know the bacterial transmission and the viral transmission, and the use of condom prevents these infections to some extent. Now contraception means avoidance of pregnancy to achieve can be achieved by preventing the fertilization of ova. मीन्स कि ओवा का फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो बैरियर्स यूज किए जाते हैं, उसको हम कह रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन। नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर: एक मैकेनिकल बैरियर जिसमें कॉन्डम और सर्वाइकल कैप कैन बी यूज्ड। सेकेंड, केमिकल मेथड इन विच ओरल पिल्स आर यूज्ड। थर्ड मेथड इज IUCD, दैट इज द लूप एंड द कॉपर टी, एंड fourth is the surgical method, that is vasectomy and tubectomy. So these are the methods of contraception, and it is again important topic from the exam point of view. Now first let us see the physical barrier. Physical barrier, as we have just seen, it can be used condom or cervical cap. So it prevents the union of egg and sperm.
So that means when egg and sperms does not meet together, it prevents pregnancy, and this is the physical barrier method. Next, chemical method. Chemically, so when oral pills are used, and using these oral pills, hormonal balance gets disturbed of the body, so that eggs are not released, but this chemical method may have many side effects in the body. The third method is the IUCD method, in which copper T or the loop is placed in the uterus to prevent pregnancy. Now fourth is the surgical method, in which as we have seen two methods. Vasectomy means in which in males the vasa difference is blocked, so it is known as vasectomy. वर्ड्स से हम इसको याद कर सकते हैं कि वासा डिफरेंस को ब्लॉक कर रहे हैं. वासा मीन्स वैसेक्टोमी. और फीमेल्स में फैलोपिन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर, सो इट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी. So these are the surgical methods. Now next is the female feticide, means the practice of killing of female child inside the womb. It is known as female feticide, and for a healthy society, a balanced sex ratio is needed that can be achieved by educating people to avoid these practices like female feticides and prenatal sex determination, as these are legal offense in our country, so as to maintain the balance in sex ratio. Now let us see the question answers. First, what is fertilization and what happens if the egg is not fertilized? As we have seen that the process of meeting of male gametes, that is a sperm and the ovum, it forming zygote, so this is fertilization. And if egg is not fertilized, means the lining which is not needed in the uterus anymore, so this lining slowly breaks up out of the vagina and moves out in the form of blood and mucus, which is known as menstruation. Second question is define menstruation. So as I've just repeated the answer, menstruation is when the fertilization is not taking place, so the lining inside the uterus, which has become thick and spongy, for embryo it is not needed anymore, and so this lining breaks up and comes out of the vagina in the form of blood and mucus, and this cycle is known as menstruation. Now, why reproductive health is important, as we are just seeing in the screen? It is important because first of all, what is this reproductive health? That is when a total well-being in all aspects, that is physical, emotional, social and behavioral, and it is important for a person to take care of self-reproductive health by taking healthy diet and maintaining hygiene of reproductive organs. Now explain various methods of family planning. So as we have just seen the various method, that is the mechanical barrier, the chemical barrier, IUCD method, surgical method. So these are the methods of various methods of family planning. So how HIV/AIDS can be prevented? So as HIV, it is a very infectious and deadly disease, and it is possible to prevent such type of disease by using a barriers like condom, etc. And safe sex can prevent transmission of these sexual characters from one partner to another. Hope students this worksheet must be clear in English. अब इसको हम एक बार हिंदी में भी इस टॉपिक को स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निषेचन क्या है. निषेचन वह विधि है जिसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जिसको हम निषेचन कह रहे हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना. तो शुक्राणु इस तरह का होता है जिसके अंदर कि उसका एक हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है, और ये जो है ये अंडाणु है. दोनों के मिलने से जो है युग्मनज का निर्माण होता है. अब क्या होता है जब अंडे का निषेचन होता है या नहीं होता है? तो जब अंडे का निषेचन होता है तब निषेचित अंडा जो है वो क्या कहला रहा है? युग्मनज कहला रहा है. और जो गर्भाशय में रोपित हो जाता है और रोपण के पश्चात युग्मनज में विभेदन और विभाजन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है. अब प्लेसेंटा क्या है? ये एक विशेष ऊतक है जो कि तश्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी रहती है, और इसका
प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? मां के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन भ्रूण को प्रदान करना, और दूसरा पॉइंट है भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। और अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक का जो समय है उसको गर्भकाल कह रहे हैं, और इस अवधि में लगभग 9 महीने का समय लगता है। ये तो हुआ जब अंडे का निषेचन हुआ। अब अगर अंडे का निषेचन नहीं हुआ तो क्या होता है? अब गर्भाशय खुद को इस निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए हर महीने तैयार करता है, और गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती है भ्रूण के विकास के लिए। लेकिन यदि अगर निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती, और यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। तो यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, जिसको हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 तक की उम्र के बाद अंडाशय से अंडे का उत्पादन बंद हो जाता है और फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसको कि हम रजो निवृत्ति कहते हैं। अब जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। अब रोगों का लैंगिक संचरण की किस तरह से लैंगिक रूप से ये रोग ट्रांसफर हो रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है रोगों का, वो या तो जीवाणु जनित हो सकता है जिसको कि हम गोनोरिया और सिफिलिस कह रहे हैं, या विषाणु जनित हो सकता है जिसको कि हम वॉट्स या HIV एड्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु द्वारा कौन सी बीमारी हो रही है और विषाणु के द्वारा कौन सी। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कॉन्डोम के उपयोग से इस रोग का संचरण कुछ सीमा तक इसको रोक पाना संभव है। और गर्भरोधन यानी कि गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। अब गर्भरोधन के भी अलग अलग प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं उसको अभी हम देखते हैं। अब ये एक चार्ट के फॉर्म में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से गर्भरोधन के प्रकार हैं, जिसमें यांत्रिक अवरोध हो गया जहां पर कॉन्डम और सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा है रासायनिक तकनीक जो कि दवाई के द्वारा है। थर्ड है IUCD जिसमें लूब या ट्यूबेक्टोमी के द्वारा। और चौथा है शल्य क्रिया जिसमें नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी जो है ये मेथड्स इसमें होते हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग मेथड्स को हम स्टडी करते हैं। अब पहला मेथड है यांत्रिक मेथड जिसमें कि शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। तो उसमें क्या मेथड हो सकता है? शिशन को ढकने वाला या तो कंडोम का इस्तेमाल हो सकता है या योनि में रखने वाला सर्वाइकल कैप। तो ये यांत्रिक अवरोध मेथड है जिसमें कॉन्डम और सर्वाइकल कैप का यूज हो रहा है। दूसरा है रासायनिक तकनीक जिसमें कि अभी हमने देखा कि जहां पर दवाई ली जाती है। अब दवाई ली जाती है तो उससे हार्मोनल का संतुलन जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण कि मादा में अंडा नहीं बनता, लेकिन इसके शरीर में विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। ये दवाई शरीर को नुकसान भी दे सकती है, जिसको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। वो साइड इफेक्ट्स भी शरीर में हो सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारा IUCD। तो IUCD का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब इसके अंदर लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थित या स्थापित किया जाता है जिससे कि गर्भधारण नहीं होता। और चौथा है शल्य क्रिया तकनीक जिसमें पहला मेथड है नसबंदी। तो पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं का स्थानांतरण रोका जाता है जिसको नसबंदी कहा जाता है, जो कि पुरुषों में होता है। और ट्यूबेक्टोमी महिलाओं की अंडवाहिनी को अवरोध किया जाता है जिससे कि अंडे का स्थानांतरण नहीं हो पाता। तो ये दो हमारे शल्य क्रिया तकनीक है, यानी कि एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसके मेथड से पुरुष और मादा में महिलाओं के अंदर अवरुद्ध कर दिया जाता है शुक्राणु और अंडे को। नेक्स्ट है भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण हत्या। मादा में भ्रूण को जो गर्भाशय के अंदर ही मार दिया जाता था जिसको कि हम भ्रूण हत्या कहते हैं। तो लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो ये हमें देखने को नहीं मिलता। इसमें काफ़ी जो है चेंजेस आए हैं
लोग जागरूक हुए हैं और एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है और इसीलिए यह तभी संभव है जब सभी लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, वह भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोका जाएगा। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट, ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। अलग अलग हम मेथड्स देख रहे थे वो थे हमारे परिवार नियोजन के उपाय, जिसमें यांत्रिक अवरोध, हार्मोन का संतुलन में परिवर्तन किया था हमने, गोलियों के द्वारा शल्य क्रिया, IUCD। तो ये अलग अलग मेथड जो थे वो परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय थे और ये जो सारे परिवार नियोजन के हमने उपाय देखे ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम ये अलग अलग जो उपाय हैं उनको लिख सकते हैं, जैसे कि एक चार्ट के फॉर्म में भी अभी आपको मैंने दिखाया, तो वो चार्ट बना के और उनको आप एक लाइन में उसको आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट है हमारा निषेचन क्या है और क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि निषेचन क्या है, जब शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है। और निषेचन न हो पाने की स्थिति में, अगर निषेचन नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति के अंदर जो यूट्रस या गर्भाशय के अंदर जो अंदरूनी दीवार जो मोटी और स्पंजी हो जाती है तो वह परत धीरे धीरे, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए वह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकल आती है, जिसको कि हम ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। तो अगर हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म क्या है, तो इसका भी उत्तर यही है, यानी कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी, इसमें भी हम इसी आंसर को लिखेंगे। अब हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, जन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो जन स्वास्थ्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह अपने जन स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें व प्रजनन अंगों की स्वच्छता पूर्वक उसको पूरा ध्यान रखें। और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताकि जो हमारा हम शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से पूर्ण तरह से स्वस्थ रहें और इसीलिए ये आवश्यक है कि जनन स्वस्थ होना चाहिए ताकि सामाजिक रूप से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें। HIV एड्स का बचाव कैसे किया जा सकता है। तो HIV एड्स जैसा कि हमें पता है कि एक घातक संक्रामक बीमारी है और इस बीमारी का जो है बचाव, और ये फैलता कैसे, असुरक्षित यौन संबंध से। लेकिन अगर हम कंडोम जैसे किसी अवरोध का अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ पर हम इस HIV एड्स की काफ़ी हद तक सुरक्षा कर सकते हैं और ये एक रोगी साथी से दूसरे रोगी साथी तक यह नहीं पहुँच पाता। और ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो रोग है ये विषाणु का संक्रमण है और ये विषाणु के द्वारा ही ये घातक बीमारी फैलती है। तो होप स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आपको जो डिफरेंट टॉपिक्स को हमने स्टडी किया वो टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी आप इसके करें। कुछ इम्पोर्टेंस भी मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो उनकी अच्छी तरह से आप लिख कर आप याद करें, प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।